Let me share my screen. Let me know once you're able to see my screen. You're able to see my screen, guys? Yes, sir, but very bigger screen, sir. I mean, Exactly. because few people has commented that it is not visible, so I make the font little bigger. But I'll cover everything. I mean, I'll make sure that everything is visible. And now we'll talk about binding. So far everybody has understand what is binding is. Binding is whatever there is in our business logic, whatever there is in our properties file, how we will bring this to customer. Whenever I'm saying bring this to customer means, sorry, user, how I'll bring this to user. So a user is able to view only the browser, and browser is nothing but the HTML part. So far we understand this, correct? And in component, what we have our template, which is our view part, and then we have our that class. So all the logic will be inside the class, and the view part will be inside the template. Okay. So whenever we are declaring any properties, how those properties will be available to our HTML portion. So this we are going to understand. So you can say it's a way of communication between your template and in your class. So I'll say between your component and between your view template, correct? So this we can say. So let me share one PPT I have prepared. So how does Angular data binding works? So PPT is visible? No, sir. No, sir. Okay, 1 second. Share. The PPT is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So see, I mean, before we see this line number 21, and just understand this slide 22. So this is our component which I'm talking about. So component, what it will have? It will component means our TS file. Component means our logic part. Yes. Component means where our properties are declared. Correct? Huh? So far we have seen that. Whenever I have to bring any value, we are typing in our component. We are declaring a properties. And similar, whenever we have to bind it here, we have done this through interpolation. Correct. So interpolation is a very basic way to bind. I mean, it's a very obvious thing. Everybody should understand what is the interpolation is. So interpolation is nothing but two curly braces. Correct. Now double curly braces, and whatever properties you have declared, those properties will be available into the this HTML template. Correct. And we have seen this. How to declare a properties in component, and then how to bind this in our HTML. That is pretty obvious. So if anyone has any doubt on this, I can write a code and I can show that. Interpolation is clear to everybody, na? Yes, sir. Sanskriti, Yes, sir. don't hesitate. If you have any doubt, just let me know. No, sir, no doubt. No doubt. Now this screen is visible, na? Yes, sir. Now I'm sharing my Visual Studio Code. So Visual Studio Code is visible? No, sir. No, sir. No. Why every time I have to share the screen? Entire screen I cannot share. You can, sir. There was some option to share entire screen. New share. See, now I'm sharing the entire desktop. So are you able to see my Visual Studio Code? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And now you are able to see this HTML also? Yes. Yes, sir. This is a PPT. Sorry, HTML, PPT. So PPT and Visual Studio Code, both I'm able to share simultaneously, correct, na? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So see, so the communication between your HTML and component is also
It's a two-way binding and it's a one-way binding. So let's understand what is the two-way binding. Two-way binding is again a little. It's not tricky. It's a straightforward. I'll make you understand. Don't worry. But sometime your component will send some data to HTML, okay, and sometime your HTML will change some data, and that should be available to component. So whenever you are Sir, changing वो in your component, okay, and that data is coming to HTML, okay, that is the one way. And whenever you are changing here and the data is coming to this place, okay, so this is another way. And there is another scenario where both are communicating with each other. So correct. So is this clear? There are three way. So those three way I have explained here. One way data binding, one way data binding, one way data binding two times. Why? Because one way data binding from component to view template. Correct. Okay. And then one way data binding from view template to component. Correct. Component. So this is so these are the two things. So already I have mentioned this property binding, whatever we do in our square bracket, correct? Whenever I was talking about parent and child component communication at the rate input at the rate output, okay, those time I have just mentioned that you just use it with square bracket. Today I am talking in detail about the property binding and event binding, and then if these two are clear, then we'll talk about the Two-way binding. two-way binding. Two-way data bindings, how the two-way data binding will work. Okay, it's not ng model, it's ng model. It's ng model. Okay, so these three things we are going to understand. And one, this interpolation. So interpolation is very simple. You can write any expression, okay, that will also be available to your view. So you can ask me, or that doubt should come in your mind, that if there was interpolation, then why we need this? Because interpolation, what it will do, it will also bring the data from component to your template. Then why we need this? Again, why we need from component to view template? Why we need the property binding? Correct. So these two things we'll see, that if interpolation was there, then what was the need of this property binding? Okay, first try to understand what is the property binding and what is the interpolation. Okay, so interpolation is very easy. Let me explain you. No interpolation. I'll explain first here only. Let me use a rough slide. So there are two portions, correct now? So first, okay, so let me explain the interpolation. First, what we will do, our first step is, step number one is declare a property. Where we'll declare our properties? Inside component. Correct. Yes. And how we declare inside a component, how we declare a property? Suppose I want to declare banner, correct? I've taken the example of banner. So how we write here? Banner, and then the type string, and then the value, correct? So we are learning interpolation, correct? Okay, in your TS file, you have to write like this. And then once you'll go to your HTML, okay, so generally just for learning purpose, inside our header, we'll take a header, okay, and inside our header, what we'll do, we will use the curly braces. So I mentioned two curly braces. So you use two curly braces. So this is the signature of symbol of interpolation. Interpolation. Okay, and if you will copy it here, automatically this value will come. Okay, so since you guys are not using your laptop, I mean both Sanskriti and Varisha, Aman and
Salis, they are using, correct now, they are using their laptop, so they both can try this. So any one of you can share your screen and can write this piece of code. Okay, let me ping this. I'll ping this in chat and show me that it's working fine. Chat. Anyone can share your screen and do this. Just declare a property inside your class, okay, and then use this, and we are learning interpolation. It should start appearing. Any one of you can please do that for me. Share your screen, and it's a multiple sharing, so you can share it. Okay, Okay, sir. it's a multiple sharing, so you can share. I'm not sure whether I have to stop it or directly you can share. Try it and then I will stop. Are you able to share your screen? Anybody? Let me stop sharing. Yes, sir. Then you should. Perfect. It's not capital. It's a small and it's a colon. कुछ देखते नहीं हो भाई तुम, जो चैट में पिंक किए हैं कम से कम वो कॉपी पेस्ट करो तुम। Okay. क्या दिमाग रहता है। बैनर के बाद से कोलोन लगाना है और उसका टाइप बताना है स्ट्रिंग। पुराने वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि यहाँ पे उल्टा लिखते हैं, यहाँ जावा की तरह नहीं लिखते हैं। कैसे चैट पे जाते हैं, वह ऊपर क्लिक करो तो चैट दिखेगा तुमको। वो डबल कोट्स सही करो, डबल कोट्स सही करो। अरे डबल कोट्स गलत है, इसमें ऐसा डबल कोट्स नहीं होता है, सही करो उसको। अरे वो सिंगल कोट, हाँ वैसे भी दे सकते थे, वो कॉपी पेस्ट होके नोटपैड से आया ना, वो तो इससे सही नहीं। अभी बैनर को यूज करो, कहीं पे यूज कर रहे हो तुम उसमें एचटीएमएल फाइल में, उस ऐसे ही दिख जाएगा। अरे मतलब कुछ समझना नहीं है, मतलब दिमाग एकदम से, तुम थोड़ा योगा वगैरह किया करो। यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे नहीं आएगा वो। तुमने कहाँ पे लिखा है, कौन से एचटीएमएल में आएगा? index.html। नहीं नहीं, कंट्रोल भाई, तुम लोग पढ़ना लिखना बंद कर दो, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कंट्रोल एस करो, वहां पे जाओ जहाँ पे तुम बैनर बनाए हो, प्रॉपर्टी टीएस फाइल की, टीएस फाइल पे जाओ, टीएस फाइल जो अभी जहाँ पे बैनर प्रॉपर्टी बनाए हो। अच्छा अच्छा हुआ वरीशा और संस्कृति क्या बोलते हैं, मोबाइल से लॉगिन है, नहीं तो अगर उनकी स्क्रीन शेयर हो जाती ना। हाँ एक सेकेंड, हाँ बैनर ये कहाँ पे तुमने लिखा है? स्टूडेंट डिटेल्स, अच्छा हाँ स्टूडेंट डिटेल्स पे ना, फिर वहां पे आएगा। ओके परफेक्ट, फिर वहां पे आएगा। माई बैड, मुझे लगा कि कहीं और यस डिक्लेयर सर। किया आपने। हाँ तो स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर कौन सा है? कंपोनेंट्स डॉट एचटीएमएल, हाँ यहाँ पे, यस परफेक्ट। हाँ करली ब्रेसेस बनाइए, बैनर वहां पे आएगा। भाई ब्रैकेट भी नहीं बन रहा है। हाँ ठीक है सेव। परफेक्ट, समझ में आ गया आ ना? गया। यस हाँ सर। समझ में आ गया ना कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, कहाँ पे और कैसे करते हैं, सबको समझ में आ गया? किसी कोई डाउट? नो सर। इंटरपोलेशन क्लियर है ना? यही से पूछा जाएगा इंटरपोलेशन यस कैसे सर। करते हैं। तो कुछ नहीं, बस एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना है या करली ब्रेसेस बना करके, और उसी वाले एचटीएमएल में काम करना है। किसी और वाले एचटीएमएल में ये नहीं पास होगा, उसी वाले एचटीएमएल में करना है। ठीक है,
तो हमारा इंटरपोलेशन हो गया। अभी क्या है ना कि अब हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग बनाते हैं, वो थोड़ा सा मतलब उसमें 2-3 स्टेप है, तो आप लोग प्रॉपर्टी बाइंड को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद से टू वे बाइंडिंग है, वो थोड़ा सा और समझने वाली चीज है। तो अब यू स्टॉप शेयरिंग, आई शेयर। सर टू वे बॉन्डिंग में प्रॉपर्टी बॉन्डिंग नहीं नहीं नहीं, अभी होगी या तुम वो छोड़ो तो टू वे वन वे बाइंडिंग। बॉन्डिंग में? नहीं, सुनो सुनो, अभी टू वे बाइंडिंग के नाम की कोई चीज होती है, यू फॉरगेट इट। अभी मैंने आपको क्या बताया, वन वे बाइंडिंग बताया इंटरपोलेशन का। इंटरपोलेशन से भी ये चीज होती है और प्रॉपर्टी बाइंडिंग से भी होती है। अब मैं आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग बताने वाला हूँ, उसको स्टॉप करिए। तो हो गया। तो इंटरपोलेशन क्लियर है ना सबको? अब मैं बताता हूँ, क्या बताऊंगा, प्रॉपर्टी यस सर बाइंडिंग। क्लियर है। प्रॉपर्टी आगे। बॉन्डिंग। मतलब ये अगर क्लियर है तो ये कद्दू में तीर मारने जैसा है, और इसके बाद से भी अगर क्लियर नहीं हो तो मतलब शर्म आनी चाहिए सबको। प्रॉपर्टी बाइंडिंग, अब प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए मैंने क्या बताया था, कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, करेक्ट, पहला पॉइंट है ये। यस सर। दूसरा पॉइंट क्या है, ये भी वन वे बाइंडिंग है। क्या है, वन वे दिस बॉन्डिंग। वन इज ऑल्सो वन वे बाइंडिंग। इंटरपोलेशन भी क्या था, वन वे बाइंडिंग था। हाँ ना अमन? यस सर। हाँ सर। हाँ ओके। सो तो ये कैसे यूज करेंगे, इंटरपोलेशन के लिए हमारा सिंबल क्या था, ये था, करेक्ट, मतलब डबल 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 करली करली बस। ब्रैकेट। ठीक ना, ये सब भूलना नहीं चाहिए भाई। अगर किसी को अगर कोई अगर भूला, गड़बड़ किया, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं। और ये क्या है, ये भी वन वे बाइंडिंग है। इंटरपोलेशन भी क्या था, वन वे बाइंडिंग था। तो सर इसमें इनपुट आउटपुट का यूज करेंगे ना, इनपुट का। बस तुम चुप रहो शैलेश। अब बिना इनपुट आउटपुट के हम तुमको वन वे बाइंडिंग, इसलिए तुम रट रहे हो यार, तुम समझ नहीं रहे हो तुम लोग एकदम से। बिना इनपुट आउटपुट के नहीं होगा। अभी हम बिना इनपुट आउटपुट के प्रॉपर्टी बाइंडिंग बना के दिखाते हैं। ओके सर। तो देखो ये वन वे बाइंडिंग है। तो इसमें क्या होता है ना अमन, हियर ऑल्सो, यस सर। what we have to do, we have to declare a properties, correct? So suppose जैसे एक और हम प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, जैसे हमने बैनर लिया था, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज बनाएंगे, बैनर पाथ, करेक्ट। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए, मैं देखता हूँ कौन बताता है। मैंने बताया था कि ये पाथ जो होता है ना, अगर इसको हमको कहीं सेव करना हो, बैनर पाथ में हम कोई इमेज देना चाहते हैं, ठीक है, कोई इमेज देना चाहते हैं, लोगो देना चाहते हैं, लोगो का पाथ देना चाहते हैं, तो उसको हम एंगुलर के कौन से फोल्डर में रखते हैं, मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि एंगुलर के कौन से फोल्डर में रखते हैं। इसमें सर, किसमें? एसेट्स में। एसेट्स में रखते हैं हाँ सर। वाह, आई लाइक इट। देखो दोनों लड़कियां खूब ध्यान से समझी हैं। ठीक है, तो सर जनरली वो क्या होता है, लड़का बोलने तुम जा तो रहा था तब तक बोल दिया। नहीं, तुम थे नहीं बाबू, तुम उस दिन क्लास में थे नहीं, बाद में इन लोगों से तुम समझे होगे। और शैलेश को तो याद ही नहीं वीडियो था, शैलेश को तो बाद में अरे सर वीडियो याद था लेकिन उसका वीडियो नाम नहीं। अभी सर जा सर रहे थे मैं देखने सर के लिए मैं सर नहीं उसको। भूला हूँ, लेकिन सर शायद आप भूल रहे हैं, क्योंकि आपने एक क्लास सिर्फ मेरे लिए स्पेशली रिवीजन की रखी थी। अच्छा हाँ, हम रिवीजन रखे थे तुम्हारे लिए, ओके ओके, हाँ मैं रिवीजन वाला भूल गया था, राइट राइट राइट। और उसमें हम भी थे सर, हम नहीं पढ़े थे, वो भी दोनों लोग पढ़ी थी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये सब तुम लोग को याद है। ठीक है, तो ऐप, तो इसमें क्या होता है ना कि ये डॉट डॉट के अंदर, ऐप के अंदर एक एसेट फोल्डर होता है, करेक्ट। एसेट के अंदर हम कोई भी अपना वो देते हैं, वो देखेंगे कि अभी पाथ कैसे देते हैं, मुझे पाथ याद नहीं है, वो मैंने बनाया था तब देखा था मैंने। ये एसेट है, इसमें से कोई भी एक लोगो अभी इंटरनेट से हम लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और वो लोगो यहाँ पे लेंगे, जैसे यूजर वन डॉट जेपीजे या कोई भी। तो हम क्या करेंगे ना, इस बार हम क्या करेंगे, एक बैनर का पाथ दे देंगे, करेक्ट ना, और उसको अपने पेज पे बाइंड करके देखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को समझना इसलिए भी जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पूरा एंगुलर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको पूरा इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा, और जो आपका प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो उसमें छोटी छोटी चीजें आएंगी। जैसे अभी हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हमको लोगो दिखाना है या फिर सबका स्टूडेंट्स का इमेज दिखाना है, तो इमेज कैसे दिखाते हैं एंगुलर में, करेक्ट ना, वो सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो छोटे छोटे वो कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये बाइंडिंग तो आपको पता ही चल रही है कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती क्या है। ठीक है, तो बैनर पाथ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे हम लोग, या प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर देंगे, वो भी स्ट्रिंग टाइप की होगी, और उसका यहाँ पे हम लोग पाथ दे देंगे, करेक्ट। जब ये पाथ देंगे तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, फिर अब हम इसके HTML में जाएंगे, करेक्ट। HTML में क्या करेंगे कि एक इमेज टैग लेंगे, करेक्ट ना,
इमेज कैसे बाइंड करते हैं HTML पे शैलेश? इमेज सोर्स इक्वल टू सर इमेज लगा देंगे अगर फाइल के अंदर है तुम्ही तो तो बस HTML आता है, बाकी किसी को आता नहीं है। तुम्हारे चक्कर में बाकी किसी को मैं बताया नहीं। सबको आता है सर, सबको आता सभी है। साथ ही पढ़े थे। अच्छा, सबको, इसीलिए हम HTML नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आप लोग खुद से पढ़िएगा। तो IMG SRC, लेकिन हमसे उसने बोला था, क्या जेपीजी नाम है, अमन ने बोला था कि सर बता दीजिएगा, HTML भी बता दीजिएगा। सर। अभी देखते हैं शैलेश को कितना आता है। तो IMG SRC और बैनर पाथ, करेक्ट? तो जब हम इसको ऐसे करेंगे ना, तो अब हम इसको क्या है कि हमको ये जो बैनर पाथ है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो इसको क्या करते हैं ना, इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग इसी कर देते हैं, करेक्ट? तो जब आप इसकी प्रॉपर्टी बाइंडिंग करेंगे, तो जो बैनर पाथ का जो ये पाथ है ना, वो पाथ यहाँ पे आ जाएगा और आपको वो वैल्यू दिखने लगेगी, ठीक है? तो अब ये करने के लिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग, तो ऐसे प्रॉपर्टी बाइंडिंग करते हैं। प्रॉपर्टी बाइंडिंग ऐसे भी करते हैं, जैसे आपने जो बैनर पाथ वहां पे डिक्लेयर किया था ना, जैसे इंटरपोलेशन में आपने जो बैनर पाथ डिक्लेयर किया था वन वे के लिए, तो सेम यही यहाँ पे भी हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। बैनर पाथ है और ये बैनर है, और इस बैनर को यहाँ पे डायरेक्ट बाइंड कर देंगे H1 में। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर अगर H1 में पहले से बाइंड किया तो इस बार H2 ले लीजिए, ताकि दोनों बाइंड रहे और आपको समझ में आए। सो टेक दिस वन H2, और यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे बैनर, ये जो बैनर है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? चलिए पहले ऐसे करके देखिए। पहले आप लोग SRC एक इमेज को करिए और यहाँ पे डाउनलोड करके देखिए, ठीक है? ये यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी, उसके लिए इनपुट टेक्स्ट लेना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हटा दीजिए। एक इमेज को ऐसे बाइंड करके अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए कि स्क्वायर ब्रैकेट से कैसे बाइंड होता है। तो सर पहले अभी आप एक लोग, इमेज हाँ नहीं वो सर आप पहले लोग टाइम लगाएंगे। एक इमेज तो नहीं हमें नहीं, रुक, हमें डाल ला के डाल एक इमेज हमें एसेट में लाके डालना होगा ना सर? हाँ नहीं वो आप लोग बाद में डालिएगा, हम आप लोग के लिए डाल के रखे हैं। तो ये एसेट्स के अंदर हमने एक यूजर नाम की एक इमेज डाली है, ठीक है? हम्म आप लोग उसको एज होमवर्क लेकर के उसको करिएगा, ठीक है? और सर उसके ये बाद अमन से है क्या? अमन बताएगा तुमको कि अमन है या कौन है। तो हाँ भाई और मैं हम, हूँ। तो अब हम क्या किए यहाँ पे, IMG SRC, हमने यहाँ पे एक बैनर पाथ डिक्लेयर कर दिया, और ये बैनर पाथ हमारे CS फाइल में भी होगा, करेक्ट? पीएस ऐप डॉट पीएस सर कंपोनेंट यहाँ डॉट तो देख रहे हैं पीएस में CS होगा ना फाइल सर? में। पीएस में। पिक जेपीजी है या कौन सा, ये नहीं डिसाइड करना पड़ रहा है। नहीं नहीं करना इमेज पड़ेगा, यहाँ सोर्स JPG ये पाथ में पूरे पाथ आपको देना होगा। तो देखिए एसेट्स के अंदर, अरे डॉट डॉट लगाएंगे आप लोग। तो क्यों डॉट डॉट क्यों लगाया हूँ? डॉट डॉट से मतलब इसके बाहर का फोल्डर। तो ये कौन से फोल्डर पे है, कैसे फोल्डर को पहचानते हैं? ये ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट PS कहाँ पे है? ये है, ये देखिए पाथ दिखाता है यहाँ पे, एप्स में। ऐप में है। तो आपको ऐप के ऊपर आना है, करेक्ट ना? आपको ऐप पे आना है, जब डॉट डॉट लगाएंगे तो आप ऐप में आ जाएंगे, और ऐप के बाद आपको कहाँ जाना है? एसेट्स में जाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? एसेट्स लिखा है। और एसेट्स के अंदर क्या लिखा है? user1.jpg। तो ऐसे पाथ देते हैं। तो पाथ आप लोग को देने आ गया ना, आप लोग दे लेंगे, यस सर। क्योंकि हम यहाँ से अब डॉट डॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये फाइल जो है ऐप के अंदर है। अगर ये फाइल कहीं बाहर होती तो ये डॉट डॉट नहीं लगाना पड़ता। तो डॉट डॉट लगाने से क्या होता है कि आप जो भी होता है ना, उसके रूट फोल्डर पे आ जाते हैं। रूट का मतलब कि जो जस्ट दोस्त उसके जिस फोल्डर के अंदर होता है वहां पे आते हैं। फिर अब यहाँ से जाना है तो स्लैश लगा करके कहाँ जाएंगे? एसेट्स पे जाएंगे। फिर एसेट्स के अंदर जाना है तो स्लैश लगा करके उस फाइल का नाम दे देंगे। तो ऐसे आप लोग बैनर पाथ देंगे, तो ये आप लोग को बाइंड करके दिखाएगा। तो ये बाइंड करके आप लोग को दिखाएगा। एक सेकेंड, अब मुझे है ना वो सर रन जितना चाहे करना है। उतना डॉट दे सकते हैं। नहीं नहीं, जितना चाहे नहीं, दो ही दे सकते हैं। न्यू कर दूंगा। अच्छा ये रन हो रहा है, शायद कुछ एरर है मेरे। दो ओपन हुआ है already, सर। मेरे को, मैं कुछ कर रहा था ना तो कुछ एरर होगा। अभी आप लोग अपने लैपटॉप पे करेंगे तो एरर नहीं आएगा, आएगा तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। सर तो डॉट इतना आप लोग थोड़ा करिए, ये बैनर पाथ दीजिए, एक बैनर कोई इमेज अपलोड डाउनलोड करिए नेट से आप लोग, ठीक है? और उसके बाद से उसको क्या करिए, इमेज SRC में दीजिए और बाइंड करके देखिए कि इसका पाथ बाइंड हो रहा है नहीं। ठीक है, तो हमारा इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग ऐसे फिनिश हो जाएगा,
ठीक है, इतना आप लोग करिए। ओके ओके सर। स्टॉप रिकॉर्डिंग है ये, पॉज करने का